جہاں تک حقیقت الوحی والی بات تھی تو اس میں آمنے سامنے دونوں فریقین نے نہیں ہونا تھا، اور اس حقیقت الوحی والی بات کو مباہلہ بار بار مان کر عامر نذیر صاحب آپ نے خود کو اور اس آپ کے دعوے کو کہ گویا آمنے سامنے نہ کھڑے ہو کر مباہلہ کرنا یا تحریری طور پہ مباہلہ کرنا یہ شریعت جدیدہ ہے، اس کو آپ نے بری طرح خود ہی غلط ثابت کر دیا ہے۔ الحمدللہ وہ نوبت ہی نہیں آئی۔ حقیقت الوحی مئی کی 15 کو چھپی ہے یا 20 کو چھپی ہے، یہ اشتہار پہلے ہی چھپ کے آ گیا۔ مرزا صاحب نے ڈائریکٹ ہی خدا سے اپیل کر دیا، یا اللہ تنگ ہو گیا، چوکھا اوکھا ہو گیا، مکا میرا فیصلہ ہے، اس مولوی نے میرے پھٹے چک دیتے ہیں۔ سنیے، جو مسنون مباہلہ ہوتا ہے وہ مرزا صاحب کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ جس مباہلے کو میں مباہلہ مانتا ہوں حقیقتاً، یہ تو میں اور مولانا ثناء اللہ امرتسری الزامی رنگ میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مباہلہ مرزا صاحب نے کیا، مباہلہ مرزا صاحب نے کیا۔ حقیقی یہ دیکھیں ناظرین، پھر اپنے آپ کو الحمدللہ عامر نذیر صاحب اتنے بخلائے کہ جو باتیں اوپر کر رہے تھے، اب یہ دیکھیں اپنے آپ کو ہی ایک دفعہ پھر یہ جھوٹا جو ہے وہ مان گئے۔ یہ ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا کہ الزامی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے جواب دعویٰ میں بھی الزامی طور پر بالکل ذکر نہیں تھا۔ یہاں پہ اپنی بات کو یہ انہوں نے پلٹا کھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ انجام آتم اٹھائیے، مرزا صاحب سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ اصل مسنون طریقہ مباہلہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہراویں، وہ ایک جماعت مباہلین کی ہو، صرف ایک یا دو آدمی نہ ہوں۔ لو جی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کیلا نہیں ہونا چاہیے، جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ فَقُلْ تَعَالَوْا میں تعالو کو یہ ناظرین یہ پھر یہاں پہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جماعت سے مراد یہ دیکھیں ان کو یا تو پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک ویل نون پرسنالٹی تھی اس زمانے میں، اور ان کے یہ دیکھیں اگر ابھی تک یہ لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو اس وقت بھی تو لوگ ان کو کوئی نہ کوئی مانتے ہی ہوں گے نا، جو ان کے ساتھ بطور جماعت کے ان کو اپنا لیڈر مانتے، تو یہی جماعت ہوتی ہے۔ جماعت کا اور کیا مطلب ہے؟ بسیگا جمع بیان فرمایا ہے، سو اس نے اس جمع کے سیگے سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مباہلہ کے لیے بلایا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اکیلے تھے، جماعت والی کی یہ دیکھیں پھر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بات نہیں، وہ تو صرف مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اکیلا بندہ جب بات کر رہا ہے تو یہ مباہلہ تو نہیں، یہ تو مسنون مباہلہ تو اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں ضمیمہ رسالہ انجام آتم میں۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ کہتے ہیں کہ سو اس نے اس جمع کے سیگے سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مباہلہ کے لیے بلایا ہے، نہ شخص واحد کو، بلکہ منہاجک کے لفظ سے جھگڑنے والے کو ایک شخص واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑنے سے باز نہ آوے اور دلائل پیش کردہ سے تسلی نہ پکڑے تو اس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مباہلہ کے لیے آئے۔ جی ناظرین یہ پھر یہاں پہ مسنون مباہلہ کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے مباہلہ کرنا ہو۔ ہم یہ بار بار ان کو اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن بہرحال ان کے پاس اور کوئی بات بچانے کے پاس تھی ہی نہیں کرنے کے لیے، اسی کو بار بار پیش کرتے رہے، بار بار۔ صاحب آپ جو بیان فرما رہے ہیں، یہ جو پہلی آپ نے بات کی جناب کہ مولوی صاحب قسم کھانا چاہتے تھے مقابلے پر، محترم میں نے آپ بھی مولوی صاحب کی طرح مجھے تھوڑے سے کنفیوز لگ رہے ہیں محترم۔ یہ دیکھیں آپ نے مولوی صاحب کی تحریر نہیں پڑھی، وہ ایک یہ قسم اور مباہلہ ساتھ ساتھ چلا رہے تھے مولوی صاحب ماشاءاللہ۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے ایک ہی صفحے کے اوپر، یہ دیکھیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مختصر یہ کہ ہم قسم اٹھانے کو تیار ہیں، اور اسی صفحہ پہ اس کے مقابلتاً کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک الفاظ مباہلہ مقرر ہو چکے ہیں جن پر ہم نے تمہارے ہی منقولہ مضمون میں خط دے دیا ہے، جن کو تم نے منظور بھی کر لیا ہے۔
ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے یہ مولوی صاحب کی طرح مجھے لگتا ہے آپ بھی اس لیے کنفیوز ہیں کہ آپ اس کو مناظرہ، اس کو جناب مباحلہ مان بھی رہے ہیں، پھر مولوی ثناء اللہ مرسری کے بارے میں مان رہے ہیں کہ وہ مانتے تھے اس کو، پھر آپ ایک شریعت جدیدہ کی آپ نے بات شروع کی، اس میں خود ہی پکڑے گئے. کیوں؟ کیونکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے وہ وجہ 8ویں وجہ کے طور پہ بیان ہی نہیں کی اس کو نامنظور کرنے کی. عامر نذیر صاحب کی بات یہاں پہ نہیں چلے گی جناب. آپ حوض کوثر پہ جا کے جو مرضی کرنا ان کے ساتھ، وہ آپ جانے وہ جانے. یہاں پہ جب تک آپ زندہ ہیں، میں زندہ، یہاں پہ تو آپ نے مجھے جواب دینا ہے نا میری بات کا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں حقیقت الوحی، وہ جناب 15 مئی کو چھپی یا جو بھی ہے. محترم یہ جو حقیقت الوحی والی بات ہے، آپ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر شور کرتے ہوتے ہیں کہ مباحلہ حقیقت الوحی کے بعد ہونا تھا. یہ ایک مرزا صاحب کی طرف سے شرط تھی، ایک تجویز تھی، جو کہ یہ آپ کے ذمہ ہے ہمیں دکھلانا کہ کیا مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ حقیقت الوحی والی تجویز مانی بھی تھی یا نہیں. کیونکہ شرائط تھی نا. اب آپ اور میں شرائط طے کر رہے تھے، آپ میری کتنی شرائط ہی نہیں مان رہے تھے جی. میں آپ کی بات شرائط کیوں کہہ رہا تھا؟ آپ کے ذمہ ہے یہ ثابت کرنا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ تجویز مان لی تھی. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس تجویز کو فضول قرار دے دیا تھا، انکار کر دیا تھا اس تجویز کا بھی، حقیقت الوحی والی تجویز کا. اس لیے آپ لوگ یہ جو حقیقت الوحی کے ساتھ اس مباحلے کو اٹیچ کرتے ہیں، مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں. انہوں نے حقیقت الوحی والی تحریر کا انکار کر دیا تھا، اس تجویز کو ہی نہیں مانا تھا انہوں نے. آپ میں اگر جرت ہے تو دوں والا جناب. اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا مباحلہ والی غیر شرعی، یہ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ نے تحریر نہیں دے سکے اس کی. جزاک اللہ. جی ناظرین، دیکھیں میں بار بار غیر شرعی والی جو بات انہوں نے کی تھی، شریعت جدیدہ والی بات، اس کو کہہ رہا ہوں حوالہ دو. یہ بیچارے کبھی خود ہی شرح کر رہے ہیں، کبھی پھر مان رہے ہیں حقیقت الوحی والا حوالہ والا جو تھا بات وہ مباحلہ ہی تھی. اپنے آپ کو بھی یہ اس میں جھوٹا گویا یہ مان گئے کہ ان کی یہ بات ہی غلط تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پھر وہی بچارے اتنے وہ میرے اصل حوالہ جہاں سے بچارے گھبرائے ہوئے تھے پٹاخے. تو میں نے ان کو کہا محترم اصل حوالے ہیں یہ جو پٹاخوں کی طرح آپ پر پھٹ رہے ہیں. آپ نے تو دیکھ لیں کتنے اصل حوالہ جات دے سکے ہیں. آپ لوگ خود دے دیں میرے دوستو، خود دیکھیں. بات یہ طے ہوئی تھی کہ اصل حوالہ جات جو بات کرنی ہے ثبوت کے ساتھ اور اصل حوالہ جات کے ساتھ کرنی ہے. اللہ کے فضل سے اس عاجز نے وہاں پر پورے مناظرے کے دوران اصل حوالہ جات پیش کیے. یاد رکھیں گے یہ مجاہدین ختم نبوت. الحمدللہ. دیکھیے نا یہ صاحب، آپ وعدہ کر کے کہ اب میں یہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج تو اتنے سالوں سے میں اس آخری فیصلہ اشتہار کے ان پٹاخوں کو چھپا کے رکھ رہا تھا، آواز آ رہی تھی تو بچا. جی ناظرین یہ دیکھیں یہ کامنٹ کس نے کیا ہے، پہلے اسی کا جواب دیا میں نے، لیکن بہرحال مجاہد ہے نا یہ کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. یہ جو آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اب بے چینی میں آپ ان کو پھوڑ رہے ہیں، ان کا اب تو کوئی نہیں بنتا. یہ سارے میرے پاس موجود ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے. جی سارے موجود ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. لیکن اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے محترم عامر نذیر صاحب کو توفیق ہی نہیں ملی کہ یہ ہمیں بھی دکھلا دیتے کہ ان کے پاس موجود ہیں، اور کچھ نہیں تو میرے والے اٹھا کے کاپی کر دیتے. لیکن اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق بھی اللہ کے سچے ماموروں کو، اللہ کے سچے انبیاء کو، ماننے والوں کو دیا کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. برہان صادقوں کے پاس ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس نہیں. الحمدللہ. اب یہ آخری پٹاخہ جو آپ نے یہ دوبارہ لگایا ہے، دیکھیں اس کے اوپر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کیا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ مختصر یہ کہ جہاں سے بات چلی تھی
वहीं को आ जाएं, वही उधर से शुरू करें बात। कौन सी? मैंने कसम खाने का वादा किया था, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, आप बताओ उस कसम का नतीजा क्या होगा। लेकिन आपके सिर्फ कसम दिलवाने से या लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहने से जो आप ड्रामा रचाते हैं, मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी काबल गए हैं, इनको जुकाम हो गया है, ये अज़ाब लाई है, इनको जमीन मिल गई है 4 मरबे, ये अज़ाब लाई है। जी नाज़रीन देख लें, ये हमारे दावा जो है इसको ये गलत साबित कर रहे हैं माशाल्लाह, और अपने जवाब दावा को ये माशाल्लाह सच्चा साबित कर रहे हैं। देख लें और कहानियां सुने इनकी। इनके कपड़े पुराने देखे किसी ने, मिर्जा साहब के मुरीद ने, उसने आगे कह दिया आज मैंने देखा मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी को बटाला के स्टेशन पे उनके कपड़े साफ। कहते हैं ये अज़ाब लाई नहीं तो और क्या है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि आपके ये हरबे और ये चाले मैं जानता हूं, आप बताएं, अजाब का तयन करें कि कौन सा अजाब आएगा और कितनी देर में आएगा। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, आपकी कसम। जी नाज़रीन ये मैं बयान कर चुका हूं, ये बिल्कुल ही गैर शरी और ये गोया शरीयत जदीदा थी जी, ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की। कहां पर कुरान पाक में ये लिखा हुआ है या मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से या किसी नबी की सुन्नत से ये साबित है कि अंबिया ने दुआ करने से पहले ये कहा हो कि मुअय्यन तौर पर ये अजाब आएगा। ये देख लें इन लोगों का हाल, कुरान पाक के ये खिलाफ जाते हैं, सुन्नत अंबिया के ये खिलाफ जाते हैं, और फिर ये मुसलमान के मुसलमान और हम मुसलमान नहीं हैं। माशाल्लाह कसम, तोबा तोबा, तो कसम तो कौन तबार करे, आपको तो मैं झूठा मानता हूं। मिर्जा साहब और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह के दरमियान ये बात चल रही थी कसम खाने की। जब आर्या कादियान के आर्या और सनाउल्लाह अमृतसरी के हवाले से उन्होंने ये आर्टिकल वो पेश किया उसमें अखबार। जी नाज़रीन अभी देख लें, ये फिर आप देखे कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते। ऊपर ये ऑडियो में 2 दफा कह चुके हैं कि वो जो हकीकतुल वही वाली बात थी वो मुबाहला था, मसनून मुबाहला था, है जी। और अभी कह रहे हैं मसनून मुबाहला की बात नहीं चल रही थी, मुबाहला की बात नहीं चल रही थी, कसम की बात चल रही थी। आप आमर नज़ीर साहब बताएं, एक ऑडियो से अगली ऑडियो में आप अपने आप को ही गलत और झूठा जो है वो साबित करते रहे, इसमें मेरा क्या कसूर है। में उसका जवाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने यही दिया था कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, आप बताओ सजा क्या होगी, अजाब क्या होगा, कितना टाइम होगा। वो देते नहीं थे। बात समझ आ गई है। लेकिन मुबाहला तो हुआ नहीं, आप जिद करते हैं मुबाहला हुआ है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि जो मुबाहला आप कहते हैं ना, जिस तरह का गुलाम दस्तगीर कसूरी के साथ हुआ, जिस तरह का इस्माइल अलीगढ़ी के साथ हुआ, जिस तरह का साद लुधियानवी के साथ, उन्होंने कहा इस तरह का मुबाहला ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मेरे साथ करके अपनी मौत से हट दी है, ये अपने अंजाम को पहुंच। यही वो कहते थे, यही मैं कहता हूं कि इस तरह का मुबाहला, इसके लिए किसी मुखालिफ की तहरीर की जरूरत नहीं होती। इस तरह का मुबाहला खुदा के साथ बंदे का होता है। ये मिर्जा साहब का मुबाहला खुदा के साथ था, सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ नहीं था। ये नाजरीन, ये मैं इनको बार बार, जैसे मैंने कहा, इसका बारे सबूत इनके जिम्मा था कि ये कहां से ये बात कह रहे हैं। और ये भी देखें, मैंने जिस तरह पहले कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मसनून मुबाहला है वो खुदा के साथ नहीं होता, उसको किसने कबूल करना है। उस मसनून मुबाहला के बाद जो भी अजाब नाज़िल होना है वो किसने नाज़िल करना है, क्या वो खुदा के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अजीबो गरीब मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, लगता है इनको इस्लाम की अलफ बे नहीं पता। या साहब ये अकली बात है, इसको जरा ज़हन में बिठाएं। आवाज आपके ऊपर से कांप रही है, पता नहीं पटाखे पे पटाखे चलाई जा रहे हैं, हो गई, ये देख लिए सबने, आपके सबूत सारे देख लिए हैं, अगली गल करो। ये वो मुबाहला नहीं है जो शरीयत इस्लामिया का है, ये मिर्जा साहब का जदीद मुबाहला है। ले जी, ये बेचारे फरमा रहे थे मेरी आवाज कांप रही है, तो आए जी ये देखें मेरी आवाज कांप रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम अमर नज़ीर साहब, बात यह है कि आपके पास जनाब अगर हवाले थे तो आपने लगाने थे। आपने, आप मुझे कह रहे हैं मैं छुपा के रखे हुए थे, मैंने तो सारी दुनिया के सामने लगा दिए हैं जनाब।
6 वीडियो भी बना के अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर रहा हूँ, आप छुपा के रखे हुए हैं। अच्छा, आप कहते हैं जनाब मैं ड्रामे में जा रहा हूँ। मोहतरम, आपकी ये जो मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब हैं, ये इसी तहरीर में जिसका एक हिस्सा आपने पढ़ा है, मैं यहाँ पे सफ़ा लगाता हूँ। सफ़ा के एक तरफ लिख रहे हैं कि मैं कसम करूँगा, आप तो कसम के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ मैंने पहले पढ़ा है, आप इसको टच ही नहीं किया आपने। कहते हैं बेशक अल्फाज मुबाला मुकर्रर हो चुके हैं। तो ड्रामा तो वो कर रहे थे मोहतरम, ठीक है, मादरत खा हूँ। अच्छा, हम जिद करते हैं कि मुबाला हुआ नहीं जनाब, हम ये जिद नहीं करते कि मुबाला हुआ। मुबाला होने का मतलब ये है कि फरीके सानी ने आगे से उसको मंजूर किया। हम ये जिद करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये तहरीर जो है वो मुबाहला की तहरीर थी, और वो अब मान गए हुए हैं। सारी दुनिया को पता चल जाएगा जब इंशाल्लाह वीडियो बनेगी कि आमन नज़ीर साहब तो 10 मिनट बाद ये मान गए थे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए इसको चलाया आगे ताकि खूब खुल जाए सब लोगों के सामने कि सच कहाँ है, हकीकत कहाँ है। और आमन नज़ीर साहब, आपका ये बार बार एक ही बात रिपीट करना कि जनाब ये जदीद शरीयत का जनाब ये था, मुबाहला था, आप इसका कोई सबूत नहीं दे सके, कोई तहरीर नहीं लिखा सके, आप कोई सबूत नहीं दे सके। और मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जनाब ये ठीक है, वो मसनून मुबाहला नहीं था जिसमें आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये मुबाहला था और इसमें शरीयत की इजाज़त इसमें है। वरना आपके मौलवी साहब ना कहते कि ये इसकी इजाज़त ही नहीं है, हमें दिखाएं तहरीर। मैं तो बार बार मुतालबा कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं जी आपने ऊपर इससे पहली वाली ऑडियो में कहा था अकेले के साथ जनाब मुबाहला नहीं हो सकता। जनाब अकेले के साथ मुबाहला। नाज़रीन, मेरी ये ऑडियो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस ऑडियो के ऊपर आमन नज़ीर साहब ने कुछ ड्रामा करने की कोशिश की। सुने जरा। नहीं होने की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप गलत कर रहे हैं। इस लिहाज से मिर्जा साहब ने भी फर्द वाहिद के साथ मुबाहले किए हैं। एक, हाँ, उस ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको दुनिया जानती है। अहमद मसीह वाली बात आपको पता ही है, मैं यहाँ पे हवाला लगा देता हूँ, अगर नहीं पता तो मैं लगा देता हूँ। अहमद मसीह वाली जो बात हुई थी, और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को तो एक दुनिया जानती थी। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको दुनिया जानती हो, जिसको जी, मैंने कितनी वाज़ेह ये बात कर रहा हूँ कि एक बंदा अगर है भी ऐसा बंदा जिसको एक दुनिया जानती हो, जिसको एक दुनिया जिसके साथ, जिस तरह अहमद मसीह की मैंने बात की, मसीह सलाम ने फरमाया था बिशप से तहरीर ले लो, तो इसका मतलब ये उसके साथ जमात ही होगी ना। लेकिन ये इसके ऊपर ड्रामा करेंगे आगे, देखते जाएं, क्योंकि इनके पास और तो कुछ बचा नहीं था। इन्होंने कहा चलो मैं जाते कोई न कोई तो मैं पॉइंट मारा, लेकिन उसमें भी बुरी तरह फंसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग जानते हो। और या तो आप कह दें कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को तो कोई जानता ही नहीं था, गुमनाम सी शख्सियत थी, ये तो आप मानेंगे नहीं। आप तो उनको बहुत बड़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जनाब। इसलिए आपकी ये बात बिल्कुल गलत है कि अकेले बंदे से, यहाँ पे अकेला बंदा क्या है, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ उनके लोग थे जो उनको मानते थे कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा मौलवी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी, इस पर हमारे जो मोहतरम तारिक चौहान साहब थे, उन्होंने ये लिखा कि मुनाजरा के तयशुदा वक्त के मुताबिक 3 घंटे गुजरने वाले हैं, क्या मुनाजर इसके वक्त को बढ़ाना चाहते हैं? तो मैंने उसके ऊपर उनको ये लिखा कि मेरा ख्याल है बात वाज़ेह हो चुकी है। आखिरी ऑडियो खाकसार की होना तय पाई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान, दोनों के दरमियान ये तय पाया था, क्योंकि मैं मुद्दई हूँ, आखिरी ऑडियो मेरी होगी। और देखें कितनी मज़े की बात है कि इस बात को भी ये बेचारे बुरी तरह शिकस्त खाने वाले मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत अब अगले दिन बड़े जनाब वो इश्तहार बांटते रहे, जो है वो फैलाते रहे सोशल मीडिया पे कि जी मैंने कहा आखिरी ऑडियो मेरी होनी है। और मैंने बार बार मुझे कहना पड़ा, इसलिए कहना पड़ा कि आमद नज़ीर साहब अपनी जानबूझ के इस मनाजरे को 3 घंटे गुजरने के बावजूद लंबा खींचना चाह रहे थे, जो कि हमारी शराइत के खिलाफ था। इसलिए कि हमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो 3 घंटे के बाद बाहम रजामंदी से इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और मैंने अपनी यहाँ पे कह दिया था कि मेरी इसमें कोई रजामंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि बात तो पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। और सच्ची बात यह है दोस्तों कि बात तो 15-20 मिनट बाद ही वाज़ेह हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह।
ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲਤਾ ਜੇ या साहब और नवा मसला खड़ा हो गया आप कह रहे हैं मिर्जा साहब ने गलत लिखा है कि ये जो कुरान कहता है कुल तालो, इन्हें कहो, जमा के सीगे से इनको बुलाया, जमात होनी चाहिए। मुबाला उस बंदे के साथ जो खुद को मामूर मिनल्लाह होने का दावा कहे कि मैं मामूर मिनल्लाह हूं, उसके साथ दावा करने वाली जमात होनी चाहिए। मिर्जा साहब ये बात कुरान से साबित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मिर्जा साहब ने अकेले अकेले बंदे से भी मुबाला किया है इसका मतलब मिर्जा साहब ने फिर ये देखें मेरी ऑडियो मैं दोबारा आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, ये इन्होंने मेरे ऊपर बहतान लगाया है, उनके खिलाफ हरकतें की हैं, यही हम कहते हैं। हमारा दावा साबित हो गया कि मिर्जा साहब ले जी इनका दावा साबित हो गया, माशाल्लाह इनका दावा साबित हो गया। दावा क्या था कि आया ये तहरीर मुबाहिला की तहरीर है या नहीं, और ये देखें क्या साबित कर रहे हैं, माशाल्लाह। कुरान और हदीस को नहीं कुरान और हदीस उनका दीन नहीं था, उनकी एक अपनी जाती शरीयत थी जो उनको ये लाश नामी कोई खुदा था उनको जो। ये देखें नाजरीन, हमने कहा था कि मौजू से हटके बात नहीं करनी, लेकिन इन बेचारों के पल्ले कुछ रहा ही नहीं था, इसलिए मौजू से हटके अब ये स्टोरियां सुनाने लगे हैं। बताता था कि ये तुम्हारे अहकामात हैं, ऐसे करो ऐसे करो। ये मिर्जा साहब का अलग थलग दीन था, दीन इस्लाम की वो बातें नहीं करते थे। अब क्या करेंगे, ये मिर्जा साहब को आपने झूठा कर दिया है कि मिर्जा साहब झूठ बोल रहे हैं, वो कुरान से साबित कर रहे हैं जमात से मुबाला होना चाहिए आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं मिर्जा साहब, ये नवा कट्टा खोलता जे और केड़ी गल करिए फिर हुन। अच्छा चलें इसी का जवाब दे दें कि मिर्जा साहब ने गलत बयानी की है, तजाद बयानी, यानी जुबान से कहा कि जमात के साथ मुबाहिला करना चाहिए और अमली तौर पर एक एक बंदे से भी मुबाहिला करते रहे। इसी का जवाब दे दें कि मिर्जा साहब की इस हरकत को आप तजाद कहते हैं, झूठ कहते हैं, कुरान और हदीस से बगावत कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका जवाब दे दें, बात खत्म कर लेते हैं। ये लेखे नाजरीन, ये इन्होंने बहतान लगाया मेरे पे, मैं दोबारा आपको ऑडियो सुनाता हूँ। और इनको ये तारक जौहन साहब को अब कह रहे हैं जो कि जज थे वहां पे कि 1 मिनट ठहर जाएं, मसला रॉन्ग हो गया है, इस ऑडियो का जवाब देने दें इनको, या जो भी इन्होंने कहा है। बहरहाल ये नाजरीन मेरी ऑडियो सुने कि मैंने असल में कहा क्या था। क्या मैंने ये कहा था कि मिर्जा साहिब फर्द वाहिद के साथ, जिसके साथ कोई भी नहीं था और जिसको कोई बंदा जानता ही नहीं था, उसके साथ मुबाहिले करते रहे? सुने मेरी बात, मिर्जा साहब ने भी फर्द वाहिद के साथ मुबाहिले किए हैं एक। हाँ उसको ये देखें मैंने फौरन कहा है हाँ, आगे सुने। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको दुनिया जानती है। अहमद मसीह वाली बात आपको पता ही है, मैं यहाँ पे हवाला लगा देता हूँ, अगर नहीं पता तो मैं लगा देता हूँ। अहमद मसीह वाली जो बात हुई थी, और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को तो एक दुनिया जानती थी। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको दुनिया जानती हो, जिसको लोग जानते हो। और या तो आप कह दें कि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को तो कोई जानता ही नहीं था, गुमनाम सी शख्सियत थी, ये तो आप मानेंगे नहीं, आप तो उनको बहुत बड़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जनाब। इसलिए आपकी ये बात बिल्कुल गलत है कि अकेले बंदे से, यहाँ पे अकेला बंदा क्या है, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ उनके लोग थे जो उनको मानते थे कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा मौलवी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी नाजरीन, आपने देखा इन्होंने आखिर पे एक खाम खां की एक शोशा जो है वो छोड़ने की कोशिश की। और ये देखें अहमद मसीह साहब की जो मैं बात कर रहा था, हजरत मिर्जा साहब ने, अहमद मसीह साहब एक शख्स थे दिल्ली के, जिनको वैसे दिल्ली की हद तक की लोग उनको जानते थे। मिर्जा साहब ने ये कहा कि बिशप साहिबान अगर पसंद नहीं करते तो वो बिलमुकाबल अपना नाम पेश ना करें, यानी मुबाहिले में, बल्कि अपनी तहरीरी सनद देकर बदरिया छपे हुए इश्तहार के जो है अखबार फलां में जो शाया कर दें कि अहमद मसीह का मगलूब होना हर 4 बिशप, यानी 4 बिशप जिनके नीचे जाहिर है काफी ईसाई होते हैं, हर 4 बिशप साहिबान का मगलूब होना समझा जाएगा। तो अगरचे अहमद मसीह एक लिहाज से एक शख्स था, लेकिन जब बिशप साहिबान ने तहरीर दे दी तो वो एक जमात ही बन गई ना। और यही बात मैंने इनको कही थी वहां पे, जिसका ये बतंगड़ बनाने लग गए। साहब आपने एक ऐसी बात मेरे बारे में कहने की कोशिश की है इस ऑडियो में जो कि मैंने नहीं की, मैंने कही नहीं। ये जनाब 2 मिनट बाद मेरी ऑडियो सुन ले, मैंने क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अकेले बंदे से भी मिर्जा साहब ने
मुबाहिला किया, लेकिन उसके साथ उसकी पुष्पनाई पे कोई होना चाहिए, ये मैंने बात की है। कोई बंदा है, मसलन अहमद मसीह की आप लोग भी पेश किया करते हैं, वहाँ पे भी अहमद मसीह अकेला था, लेकिन मिर्ज़ा, ये ऊपर मैंने तहरीरें लगा दी हैं, मिर्ज़ा साहब ने बिशप वगैरह को कहा कि इसके तहरीर दे दो कि तुम अगर इसको कुछ हो गया तो तुम इसके साथ खड़े हो, ठीक है। तो अकेले बंदे से इस सूरत हाल में जब कोई एक साथ भी उसके खड़ा हो, मुबाहिला हो सकता है, ये मैंने कहा है। आपने मेरी बात को ट्विस्ट किया, जो कि खैर आपने करना ही था, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो गया है। अच्छा, जो कुछ हो गया वो तो खैर दुनिया देख ही लेगी, और लोग देख भी रहे हैं। अब ये देखें जनाब, आप शुरू से वही बात बार बार किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बारे सबूत आपके जिम्मा है मेरे भाई। आप अगर कोई भी बात कहते हैं ना, नई शरीयत, अभी आप फिर आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया मिर्ज़ा साहब के ऊपर, जो कि मैंने बात कही नहीं, वो कह के ये अहमद मसीह वाले ऊपर मैंने बात कह दी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, पहले आपने बात की, फिर मसनून तरीका वाला, जनाब मैंने बारे सबूत आपके जिम्मा डाला था। आप अगर कहते हैं कि ये एक नई शरीयत वाला मुबाहिला था, जिसको आप मुबाहिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं ना, वो बार बार मान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, लेकिन उसके ये आपने साबित करना था कि ये नई शरीयत है। आपके मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने तो कोई बात नहीं इसके बारे में की। आप वो कहते हैं कि तुसी ज्यादा सियाने हो भाई साहब, ठीक है। आपके मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब, उन्होंने तो इस बकौल आपके जदीद शरीयत का इनकार नहीं किया, आपने इसका सबूत ही नहीं दिया, पूरा मुनाजरे में आप इसका सबूत नहीं दे सके। फिर ये देख रहे हैं, इतनी ज्यादा मैंने बातें की आपके साथ, तफसीर सनाई वाली बात की, मुफ्ती कादियानिया के हवाले को आपने टच नहीं किया, और आप खुद बार बार कहते रहे कि सनाउल्लाह अमृतसरी भी इसको मुबाहिला मानते हैं, आप भी मुबाहिला मानते हैं, ठीक है, और हम भी जनाब इसको मुबाहिला ही मानते हैं, इस तहरीर को। अब आप ये आपने गलत बयानी की, जो आपने कह दिया कि हम ये कहते हैं कि गोया ये मुबाहिला करार पा गया था। नहीं जनाब, हम तो नहीं कहते कि ये मुबाहिला करार पा गया था। क्यों? मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहिब ने 7 वजूहात बयान करके उसके बाद लिखा, और ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं, और जैसे ये लिखा वहां पे मुबाहिला खत्म हो गया, बात ही खत्म होगी, वो दौड़ ही गया जनाब। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो इसके बाद खाकसार ने जो है, फिर जो जज थे उसके तारक चौहान साहब, उनको मैंने पूछा कि क्या मैं आखिरी ऑडियो कर लूं। उन्होंने कहा जी बेहतर, लेकिन आप देखेंगे कि इनको मैंने यहाँ पे ऑडियो करने लगा था, तो मैंने देखा कि आमर नज़ीर साहब अपना जो है, जो बेचारों की आज बहुत ही बुरी हालत हुई, उससे मजबूर होकर फिर ऑडियो करना शुरू हो गए हैं। यानी जज की, जो जज इन्होंने मुकर्रर किया था, जो मुंसिफ तारक चौहान साहब, इन्होंने, इनके कहने पे मैंने कहा था ठीक है वो हो जाए, ये अपने ही जज की बात नहीं मान रहे। माशाल्लाह।